Good morning, student. Welcome to the engineering thermodynamics. We start with the unit second chapter, ideal gas processes. In last session, in unit, we studied different topics like first, what is the ideal gas? Ideal gas means the gas which obeys all gas laws, or the gas which follows at all temperature and pressure behavior same, then that gases is called as a ideal gas. Okay, the laws of ideal gases are three: Boyle's law, Gay-Lussac law, Charles law, that is Bharat Gas Company. Okay, in which last session we studied BGS, Boyle's law, Gay-Lussac law and Charles law. In Boyle's law, at constant temperature, pressure is inversely proportional to volume. Okay, in Charles law, at constant pressure, volume is directly proportional to temperature. In Gay-Lussac law, at constant volume, pressure is directly proportional to temperature. Okay, that is three law we studied: Gay-Lussac law, Boyle's law and Charles law. Okay, after that we studied uh, ideal gas equation, that is PV equal to mRT, pressure into volume is equal to mass into R into T, that is R for gas constant, R is a gas constant and unit is a kilojoule per kg Kelvin. Okay, so after that we studied specific heat. What is specific heat? Amount of heat required to raise the temperature of substance by 1 degree Celsius. Okay, that is called as a specific heat. Okay, amount of heat required. If that specific heat at constant pressure, then it is said as specific heat at constant pressure and designated by term Cp. And Cv is the specific heat at constant volume and designated by term Cv, that is specific heat at constant volume and specific heat at constant pressure. Then heat is supplied at constant volume is mCv T2 minus Tv. For constant pressure it is mCp T2 minus Tv. After that we found a relation between Cp and Cv. Cp stands for specific heat at constant pressure, Cv stands for specific heat at constant volume. Okay, then the difference between these two terms, that is Cp minus Cv, is equal to R, and the ratio between these two terms Cp upon Cv is equal to gamma. Okay, gamma stands for adiabatic index. Gamma stands for adiabatic index. Okay, the specific constant volume of air, specific heat at Cp of air is equal to 1.005 kilojoule per kg Kelvin, and Cv of air is equal to 0.72 kilojoule per kg of air, and R, gas constant of air, is equal to 0.287 किलोजूल पर केजी केल्विन. ओके, तो ये आपको वैल्यूज ध्यान में रखनी है. Cp ऑफ एयर 1.005 है, Cb ऑफ एयर 0.72 है, और गैमा जो है 1.4 है, और आर गैस कांस्टेंट ऑफ एयर जो है वो है 0.287 यूनिट, जो है वो किलोजूल पर केजी केल्विन है. ओके, तो ये सारे हमने दिखे थे कल पिछले लेक्चर्स में. रिलेशंस देखा था Cp माइनस Cv इक्वल टू. ओके, अभी हम जो स्टार्ट करने वाले है वो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 8 प्रोसेसेस हैं, जिसमें से हमें 5 प्रोसेस रीड करने हैं. एक तो 5 प्रोसेस कौन कौन सी है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, हाइपरबोलिक प्रोसेस, उसके बाद है एडियाबेटिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, थर्मल प्री एक्सपांशन प्रोसेस एंड थ्रोटलिंग प्रोसेस. ओके, तो ये 8 प्रोसेस हमें स्टडी करने हैं दिस चैप्टर में. लेकिन स्टार्ट करते वक्त मुझे ये बोलना है कि हमें जो है यहाँ पे 5 प्रोसेस के कैलकुलेशंस निकालने हैं. कौन से 5 प्रोसेस? फर्स्ट तो है अपनी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, सेकंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, थर्ड है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, आफ्टर दैट एडियाबेटिक प्रोसेस, और लास्ट में है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. तो ये 5 प्रोसेस के लिए हमें क्या निकालना है? इक्वेशंस निकालने हैं. लेकिन इक्वेशन कौन कौन से निकालने हैं? तो उसका एक सीक्वेंस है. कौन कौन से इक्वेशन निकालने हैं? फर्स्ट तो हमें निकालना है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन. मतलब क्या रिलेशन निकालना है? PVT,
प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन निकालना है, उसको हम बोलते हैं PVT रिलेशन। जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, अभी वॉल्यूम कहाँ कांस्टेंट होता है, कौन से लॉ में कांस्टेंट होता है, गेल-ल्यूसेक लॉ में, बराबर है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मतलब कौन सा आ गई आपकी, गेल-ल्यूसेक लॉ आ गया, बराबर है। तो गेल-ल्यूसेक लॉ में क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बराबर है। मतलब प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, मतलब प्रेशर बाय टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। ये किसका था, आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का इक्वेशन हो गया, बराबर है। तो ये इक्वेशन हमें क्या करना है, पहले इसमें डिफाइन करना है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन निकालना है, बराबर है। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस में हमें क्या, सेकेंड इसमें क्या निकालना है, हमें चेंज इन वर्क डन। अभी चेंज इन वर्क डन कैसे निकालोगे, तो चेंज इन वर्क डन का जो फॉर्मूला है, वो चेंज इन वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, DW इक्वल टू प्रेशर इंटू DV, क्या है, DW इक्वल टू प्रेशर इंटू DV, PdV, बराबर है। उसके बाद हमें निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब DU, यू डिजिग्नेटेड बाय इंटरनल एनर्जी। सो DU इक्वल टू क्या होता है, MCV/dt। DU इक्वल टू क्या है, MCV/dt। मैं फॉर्मूले की लिस्ट आपको भेज देता हूँ, पहले वो फॉर्मूले लिख के ले लो, उसके बाद प्रोसेस देखना चालू करना है, ओके। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, MCV/dt, ओके। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ फॉर्मूलेस, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं, पहले तो आपको क्या निकालना है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशंस, ओके। सेकंड इसमें निकालना है वर्क डन। वर्क डन मतलब क्या होता है, DW का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इंटू DV, ओके। थर्ड में निकालना है मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज DU इक्वल टू क्या होता है, MCV/dt, ओके, MCV/dt। उसके बाद निकालना है हीट, ओके। तो हीट का फॉर्मूला अपना नॉर्मल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर प्रोसेस, Q इज इक्वल टू क्या है, W प्लस डेल्टा U। तो उससे मुझे क्या निकालना है, हीट निकालना है, बराबर है। अगर मुझे प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम दी है, तो Q का फॉर्मूला मैंने स्पेसिफिक हीट में लिखा था, Q इज इक्वल टू क्या होता है, MCV/dt, बराबर है। अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा तो प्रोसेस कौन सी आएगी, MCP/dt, बराबर है। लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर होगा या डिफरेंट अदर प्रोसेस होगी, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हीट के लिए, तो हीट के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा फर्स्ट लॉ वाला, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U वाला, बराबर है। उसके बाद मेरे पास है चेंज इन एंट्रोपी, ओके। एंट्रोपी का फॉर्मूला मैंने बताया था, DS मतलब हम एंट्रोपी से डिफाइन करते हैं। सो चेंज इन एंट्रोपी दैट इज DS इज इक्वल टू क्या आता है, DQ/T, क्या आता है, DQ/T। और चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला आता है MCP/dt, ओके। तो ये फॉर्मूला आप पहले लिख के ले लो, ओके। तो ये फॉर्मूले लिखने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोसेस के लिए स्टार्ट करेंगे, ओके। तो ये फॉर्मूले हमें क्या क्या निकालना है, एक तो पहले प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन निकालना है, उसके बाद चेंज इन वर्क डन निकालना है, उसके बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, आफ्टर दैट वी कैलकुलेट चेंज इन हीट, उसके बाद निकालना है चेंज इन एंथैल्पी, और लास्ट में निकालना है चेंज इन एंट्रोपी, ओके। तो ये 6 टर्म निकालने हैं, पहली PVT रिलेशन, सेकंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, थर्ड चेंज इन हीट, ओके। उसके बाद मुझे निकालना है चेंज इन एंथैल्पी, उसके बाद चेंज इन एंट्रोपी, ओके। तो ये सारे टर्म्स निकालने हैं, आपको ध्यान में रखना है, ओके। नाउ वी स्टार्ट विद द प्रोसेसेस। अभी टोटल प्रोसेस मैंने बताए थे, कौन से निकालने हैं हमें, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबेटिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ओके। तो ये 5 प्रोसेस के हमें क्या निकालने हैं, कैलकुलेशंस निकालने हैं, ओके। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोसेस के लिए। उससे पहले मैंने एंट्रोपी बताया था, ओके। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि सिमिलर टू इंटरनल एनर्जी, ओके। अगर सिस्टम की हीट बढ़ जाती है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर सिस्टम की हीट रिजेक्ट हो जाती है तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, उसकी ड्रॉप हो जाती है। सिमिलरली एंट्रोपी का है, इफ सिस्टम की हीट एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो एंट्रोपी आपकी बढ़ जाती है। अगर सिस्टम की हीट एनर्जी डिक्रीज हो जाती है तो एंट्रोपी क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। सो एंट्रोपी इज डेजिग्नेटेड बाय टर्म एस, देन चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू, दैट इज DS इक्वल टू DQ/T, मतलब इट इज द रेशियो ऑफ
चेंज इन हीट एनर्जी पर यूनिट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज dQ/T। ओके, अगर मैंने उसका इंटीग्रेशन ले लिया तो एंट्रोपी इज अ पॉइंट फंक्शन, सो चेंज इन एंट्रोपी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dQ/T। तो ये हो गया आपका चेंज इन एंट्रोपी वाला। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द प्रोसेस। ओके, हमें 1 बाय 1 प्रोसेस के लिए जाना है। ओके, तो फर्स्ट प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, देख सकते हैं आप। तो पहली प्रोसेस कौन सी है अपनी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ओके, उस प्रोसेस को आल्सो कॉल्ड एज अ आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज अ आइसोकोरिक प्रोसेस। आपको ये जो टर्म्स बताई है वो याद रखनी है। ओके, न्यूमेरिकल्स में आपको आइसोकोरिक भी बता सकता है और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी बता सकता है। ओके, तो प्रोसेस कौन सी है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और आल्सो कॉल्ड एज अ आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, तो क्या है इसमें कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, बराबर है। लॉ कौन से है, 3 लॉज है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गी-लुसाक लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। गी-लुसाक लॉ में कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, बराबर है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कौन से लॉ पे आ गई आपकी, गी-लुसाक लॉ के ऊपर आ गई, बराबर है। मतलब क्या है, अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट सो दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बराबर है। देखो यहाँ पे लिखा है, अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेस रिमेन्स सेम, दैट इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। मतलब V1 इज इक्वल टू V2, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते वक्त आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। मतलब V1 इज इक्वल टू V2, बराबर है। वॉल्यूम ऑफ सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस रिमेन कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। यहाँ पे कौन सा लॉ हो गया आपका, गे-लुसाक लॉ। ओके, मतलब गैस विल अकॉर्डिंग टू गे-लुसाक लॉ, बराबर है। और दिस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज अ आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं उसको, आइसोकोरिक प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, एंड लॉ इज अ गे-लुसाक लॉ। ओके, तो अभी हमें क्या निकालना है, पहले पहले तो डायग्राम निकालनी है, वेरियस डायग्राम। ओके, प्रोसेस कौन सी है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने एक सिलेंडर लिया है, सिलेंडर के ऊपर पिस्टन रखा है जिसको वेट है और उसके ऊपर स्टॉपर्स लगाए हैं। स्टॉपर्स इसलिए लगाया है क्योंकि जब मैं गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, उसको हीट ऐड करूंगा, तो गैस क्या हो सकता है, एक्सपांड हो सकता है, बराबर है। तो गैस एक्सपांड होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या करना है, मुझे कांस्टेंट रखना है। इसलिए मैंने वहाँ पे क्या लगाया, स्टॉपर लगाए। जैसे कि मैंने गैस को हीट देना चालू कर दूंगा तो गैस का क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। लेकिन स्टॉपर रखने से मुझे क्या होगा, वो गैस का जो प्रेशर है वो मेंटेन रहा जाएगा, तो मेरा वॉल्यूम क्या होगा वहाँ पे, कांस्टेंट रहेगा। मतलब गैस का मेरा क्या बढ़ने वाला है, प्रेशर एट टेम्परेचर। मतलब जैसे कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो डायग्राम में मैंने हीट देना चालू कर दिया, लेकिन गैस का वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो मेरा क्या होगा, गैस का प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी का टायर, फोर व्हीलर का, देखो हाईवे पे फोर व्हीलर के टायर ब्लास्ट हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। मतलब क्यों हो जाता है, इससे ब्लास्ट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो अंदर वाला टायर के अंदर जो एयर रहती है वो एयर का वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, बराबर है। जैसे कि गाड़ी ज़्यादा टाइम रन हो रही है तो उसमें क्या रहता है, टायर और रोड में क्या हो जाता है, फ्रिक्शन होता है, बराबर है। फ्रिक्शन होने से क्या हो जाता है, टायर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब क्या होगा, आपका प्रेशर भी बढ़ेगा, बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब आपकी गाड़ी कॉन्स्टेंटली रन होने चालू हो जाती है लेकिन टायर का अंदर का वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, जब आपका ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो टायर क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, बराबर है। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट आ जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका प्रेशर भी बढ़ रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये होगा आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट वाले डायग्राम से एक्सप्लेनेशन। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे डायग्राम निकाली है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ओके, प्रेशर ऑन वाई एक्सिस है और वॉल्यूम ऑन एक्स एक्सिस है। ओके, स्टेट 1 to 2 क्या है आपका, वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिर्फ प्रेशर क्या बढ़ रहा है,
आपका बढ़ रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्या है देखो 1 to 2 क्या है, प्रेशर वाली लाइन इंक्रीज हो रही है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, V1 इक्वल टू V2। सो वॉल्यूम का एक ही पॉइंट आएगा, बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड लाइन में प्रेशर और टेम्परेचर में। ओके, यहाँ पे क्या है, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, तो ग्राफ क्या होगा मेरा, लीनियर होगा, लीनियरली इंक्रीजेस 1 to 2। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम में। नेक्स्ट यहाँ पे है टेम्परेचर वॉल्यूम। ओके, टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। सो वॉल्यूम का एक ही पॉइंट मिलेगा और टेम्परेचर इंक्रीज होता दिखेगा आपका 1 to 2, बराबर है। सिमिलरली एंट्रोपी में क्या होगा, यहाँ पे हम हीट ऐड कर रहे हैं, मतलब आपकी एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर और एंट्रोपी क्या हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज हो रही है। ओके, 1 to 2 आपका जो कर्व है वो क्या होगा, आपका एंट्रोपी मिल रही है। ओके, तो ये हो गए आपके पीवी पीटी टीवी के डायग्राम्स हो गए। ओके, तो यहाँ पे अभी फर्स्ट तो हमारा क्या है, रिलेशन। ओके, अभी हमें यहाँ पे कैलकुलेशंस करने हैं डिफरेंट इक्वेशंस के। पहले तो हमें रिलेशन निकालना है। ओके, तो पहले जनरल गैस इक्वेशन क्या है, प्रेशर वॉल्यूम बाय टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट, बराबर है। तो मैंने दो डिफरेंट स्टेट के लिए प्रोसेस चल रही है मेरे 1 to 2, तो मेरा इक्वेशन क्या आएगा, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, बराबर है। लेकिन वॉल्यूम क्या है मेरा, कांस्टेंट है। सो V1 इक्वल टू V2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरा, P1 बाई T2 T1 इक्वल टू P2 बाई T2, बराबर है। तो ये क्या हो गया मेरा, कांस्टेंट आ गया। ओके, इसको इक्वेशन को चेंज किया, मतलब P2 बाई P1 इक्वल टू क्या आ गया, T2 बाई T1। ओके, तो ये मुझे जनरल इक्वेशन मिल गया, PVT रिलेशन मिल गया यहाँ पे। ओके, अभी पहले क्या कैलकुलेट करना है, इस पर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है, बराबर है। तो चेंज इन वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, DW इक्वल टू क्या है, PdV। इंटीग्रेशन लेंगे, बराबर है। सो DW का इंटीग्रेशन आएगा मेरा वर्क डन 1 to 2, बराबर है। यहाँ पे PdV इंटीग्रेशन में, ओके, आपका वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे, वॉल्यूम dV। ओके, सो P को मैंने बाहर निकाला और इंटीग्रेशन ऑफ dV निकाल दिया। इंटीग्रेशन ऑफ dV क्या आएगा, V आएगा। ओके, V और लिमिट क्या है उसका, V1 और V2, मतलब क्या हो गया, P इंटू V2 माइनस V1, बराबर है। लेकिन क्या है यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब V1 इक्वल टू V2 है, मतलब क्या होगा, वो 0 होगा। मतलब क्या आएगा, वर्क डन 1 to 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रेशर इंटू 0, दैट इज इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू 0। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस वर्क डन इक्वल टू 0। ओके, DW इक्वल टू PdV, इंटीग्रेशन लोगे तो वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। डीवी का इंटीग्रेशन वॉल्यूम आएगा, V2 माइनस V1, वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो V2 माइनस V1 इक्वल टू 0। सो वर्क डन 1 to 2 इज इक्वल टू 0। ओके, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस वर्क डन 0। ओके, फर्स्ट तो PV2 रिलेशन निकाला, उसके बाद वर्क डन निकाला। अभी निकालना है मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला DU इक्वल टू mcv dt। ओके, अभी इसका इंटीग्रेशन लेंगे। इंटरनल एनर्जी क्या है आपकी, पॉइंट फंक्शन है। सो U2 माइनस U1 इंटीग्रेशन लिया। mcv तो कांस्टेंट है, सो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या आएगा आपका, t, और लिमिट 1 to 2 है, मतलब क्या आएगा, T2 माइनस T1। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या मिली, U2 माइनस U1 इक्वल टू mcv T2 माइनस T1। ओके, तो यहाँ पे मुझे मिला चेंज इन इंटरनल एनर्जी mcv T2 माइनस Tv। ओके, T1। अभी हीट का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। ओके, तो यहाँ पे देखो W तो क्या है मेरा 0 है, W1 to 2, मतलब Q इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है मेरा, mcv T2 माइनस T1। सो हीट का फॉर्मूला क्या मिलेगा मुझे, Q इक्वल टू डेल्टा U है, तो Q इक्वल टू क्या आएगा, mcv T2 माइनस T1। ओके, तो यहाँ पे मैंने इंटरनल एनर्जी निकाली, हीट एनर्जी निकाली। अभी मुझे निकालना है एंथैल्पी। ओके, अभी एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ओके, तो स्टेट 1 का क्या आएगा, H1 इक्वल टू U1 प्लस P1V1। ओके, एट स्टेट 2 क्या मिलेगा मुझे, H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2V2। ओके, मुझे चेंज इन एंथैल्पी निकालना है, मतलब H2 माइनस H1, बराबर है। H2 माइनस H1 क्या होगा, U2 प्लस P2V2 माइनस U1 प्लस P1V1। ओके, तो U2 माइनस क्या होगा, U1 होगा, और प्लस P2V2 माइनस P1V1 होगा, बराबर है।
अभी यहाँ पे देखो पी वी इक्वल टू क्या होता है, एम आर टी होता है, बराबर है। यहाँ पे मास कांस्टेंट रहता है, आर कांस्टेंट रहता है, सिर्फ टेम्परेचर वेरिएबल रहता है। मतलब क्या होगा, पी टू वी टू इज इक्वल टू एम आर टी टू माइनस पी वन वी वन इक्वल टू क्या आएगा, एम आर टी वन। देखो यहाँ पे आपकी स्टेट चेंज हो रही है लेकिन आपका गैस सेम रह रहा है, इसलिए उसका मास सेम रहेगा और गैस कांस्टेंट भी सेम रहेगा, सिर्फ टेम्परेचर चेंज होने वाला है। ओके, तो एम आर टी टू माइनस एम आर टी वन, बराबर है। एम आर कॉमन निकाला तो मुझे क्या मिलेगा, टी टू माइनस टी वन मिल गया, बराबर है। अभी इंटरनल एनर्जी क्या है, यू टू माइनस यू वन। ओके, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम सी वी टी टू माइनस टी वन। ओके, वहाँ पे पुट कर दिया एम सी वी टी टू माइनस टी वन। ओके, यहाँ पे टी टू माइनस टी वन कॉमन है, मास कॉमन है, उसको निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, सी वी प्लस आर। लेकिन रिलेशन क्या है, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा, सी वी प्लस आर इक्वल टू क्या मिलेगा, सी पी। सो मुझे इक्वेशन मिल गया, चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू एम सी पी टी टू माइनस टी वन। ओके, तो ये रिलेशन आपको ध्यान में आ गया। ओके, तो ये रिलेशन आपको हमेशा यही आने वाला है हर इक्वेशन में, चेंज इन एंथैल्पी का इक्वेशन, तो ये ध्यान में रखना है। ओके, नाउ वी स्टार्ट विथ रिमेनिंग एंट्रोपी। ओके, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं डी क्यू बाई टी। ओके, डी एस इक्वल टू क्या है, डी क्यू बाई टी। ओके, तो डी क्यू का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, एम सी वी डी टी। ओके, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो फॉर्मूला क्या आएगा आपका, एम सी वी डी टी। ओके, और उसको कैसे डिवाइड करना है, टेम्परेचर टी से। ओके, अभी डी एस इज इक्वल टू क्या आएगा, एम सी वी डी टी बाई टी आ गया, बराबर, डी क्यू बाई टी। डी क्यू मतलब कितना है, एम सी वी डी टी अपॉन टेम्परेचर, मतलब एम सी वी डी टी बाई टी। ओके, अभी इंटीग्रेशन लेना है। ओके, इंटीग्रेशन लिया 1 to 2। ओके, तो डी एस का इंटीग्रेशन आएगा एस टू माइनस एस वन। ओके, यहाँ पे एम सी वी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाला, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी क्या मिलेगा मुझे। ओके, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स ln ऑफ एक्स, बराबर है। इंटीग्रेशन 11-12 में देखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, ln x रहता है, log टू द बेस e। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, log टू द बेस e ln t आएगा, बराबर है। लेकिन लिमिट 1 to 2 है, मतलब क्या आएगा, ln t2 माइनस ln t1। ओके, लॉग का माइनस होता है तो डिवाइड हो जाता है, मतलब ln t2 बाई t1 आएगा। ओके, तो मुझे चेंज इन एंट्रोपी क्या मिली, H2 माइनस S1 एम सी वी ln t2 बाई t1, बराबर है। स्टार्ट में मैंने रिलेशन निकालता, पी वी टी का रिलेशन, t2 बाई t1 इज इक्वल टू क्या होता है, p2 बाई p1। ओके, सो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, फिर से एंट्रोपी का H2 माइनस S1 इज इक्वल टू एम सी वी ln p2 बाई p1। ओके, तो ये हो गए मेरे चेंज इन एंट्रोपी। ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस और गे लुसैक लॉ। उसमें पीवीटी रिलेशन, उसके बाद निकाला चेंज इन वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन हीट एनर्जी, उसके बाद निकाला चेंज इन एंथैल्पी, और लास्ट में निकाला चेंज इन एंट्रोपी। तो ये आपके कैलकुलेशन हर प्रोसेस के लिए निकालने हैं। पहली प्रोसेस हो गई अपनी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस, और अकॉर्डिंग टू द लॉ गे लुसैक लॉ। ओके, तो ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट विद द डिफरेंट प्रोसेस। ओके, थैंक यू।